we have discussed the relation between alpha, beta, gamma. Alpha is to beta is to gamma is or what? 1 is to 2 is to 3. Already have discussed, I think, this one. अरे कर Yes, दिए थे. sir. Okay. Now write down specific heat or specific heat capacity. Write down. ये एक छोटा छोटा क्वेश्चन है, 1 मार्क 2 मार्क्स का. इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. वाह, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, छोटा छोटा क्वेश्चन है. राइट डाउन स्पेसिफिक हीट. राइट डाउन specific heat or what? Specific heat capacity or specific heat capacity. Specific heat capacity. In some book it is written as C, or in some book it is written as S or C, small c. Clear? Specific heat capacity, S or C. What is that specific heat capacity? Let's see this. You see, the amount of heat supplied to a substance is directly proportional to mass. Do you agree with this? Large is the mass, large is the amount of heat supplied. So amount of heat supplied is directly proportional to what? Mass of the substance. Large is the mass, large is the amount of heat supplied. And it is directly proportional to the temperature difference del T. Large is the heat, large is the temperature difference. Large is the heat, large is the temperature difference. Therefore, amount of heat supplied to a substance is directly proportional to mass and directly proportional to the temperature difference. Likho, write down here. The amount of heat supplied, write down here. The amount of heat supplied to a substance is bit 1. The amount of heat supplied to a substance, the amount of heat supplied to a substance is bit 1 directly proportional to the mass of the substance, directly proportional to the mass of the substance, directly proportional to the mass of the substance. Bit 2 directly proportional to the temperature difference, directly proportional to the temperature difference, directly proportional to the temperature difference. Del T. Del T is the temperature difference. So combiningly we can write here Q is proportional to M del T. So Q is equal, what is that? S into M del T. S is known as specific heat capacity or heat capacity. Write down, where S is known as specific heat capacity or heat capacity. Specific heat capacity or specific heat or specific heat. Specific heat capacity or specific heat. That is S. Where S is the what? S is the specific heat capacity. Capacity. It depends on the nature of what? Nature of substance. It depends on the nature of substance. देखो S का definition लिखेंगे अभी. What is the definition of S? I can write here S is equal Q by M del T. सर थोड़ा प्रीवियस सेट दिखा Okay, सकते हैं definitely. सर थोड़ा सा. देखो सर हीट को हम स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं क्या? स्मॉल क्यू मत लिखो. स्मॉल क्यू इज द चार्ज. 12 में लिखोगे स्मॉल क्यू इज द चार्ज. हीट को H लिख सकते हो या फिर Q लिख सकते हो, बट H इज द हीट करंट. आगे पढ़ेंगे, इसलिए कैपिटल Q में ही डिनोट करो. हुआ? स्मॉल क्यू इज द चार्ज. स्मॉल क्यू इज द चार्ज. इज इट क्लियर? यस सर. ओके. अरे लिख दिया, लिख दिया सभी? ये सर लिख दिया नाउ सर. राइट डाउन S is equal Q by M del T. S is equal Q by M del T. देखो, now what is that? We have to write the definition of S is equal what? Specific heat capacity. What is the definition? If M is equal 1 unit, unit में definition लिखेंगे, del T is your 1 degree centigrade, then what will happen? S is equal Q by
m into del T, so we are getting here S is equal Q. S is equal Q. So what is the definition of specific heat capacity? Let's see this. What is the definition of specific heat capacity? छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटा छोटा एक्सप्रेशंस मिलेगा थ्रू आउट द चैप्टर, बट ऑल आर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके थर्मोडायनेमिक्स में आएगा ये सब. कंप्लीटेड? अरे कंप्लीट हो गया? लिख दिया? Yes sir, yes Now sir. write down specific heat capacity का definition देखो. Specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree centigrade. Specific heat of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree centigrade. That is the definition of S. लिखो, specific heat capacity of a substance. Write down, specific heat capacity of a substance is defined as specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat. अरे किसका आवाज आ रहा है? अरे किसका आवाज आ रहा है? किसका इतना जोर से? देवी प्रसाद, ये साई सात्विक. साई सात्विक का सर मेरा नहीं. हेलो. यस सर. अरे आवाज थोड़ा आ रहा है. सर बहुत सारे लोग घर पे आए हुए थे. अच्छा, थोड़ा माइक ऑन ऑफ कर दो. वाह, डाउट है तो उसको ऑन करके पूछो. वाह, अरे डाउट है तो उसको ऑन करके पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वाह, समझ में? डाउट है तो उसको ऑन करो. सर फिर से डेफिनेशन रिपीट कर ओके, सकते हैं? डेफिनेशन बुलाऊंगा. अरे सही सत्य, डाउट है तो ऑन करके पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वाह, ओके. एनीवे देखो, तो डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance, to raise the temperature of a unit mass of a substance through 1 degree centigrade, through 1 degree centigrade, through 1 degree centigrade. So the amount of heat required capacity. Amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance. Amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance, unit mass of a substance through 1 degree centigrade, through 1 degree centigrade, through 1 degree centigrade. Important है. So what is the unit of S? Write down, unit of specific heat capacity. यूनिट ऑफ एस क्या है? इन एस आई. इन एस आई में क्या है बोलो? एस आई में एस इज इक्वल क्यू बाय एम डेल टी, एंड क्यू इज 1 जूल बाय के जी. ये है कैल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, एनीथिंग यू कैन टेक. डिग्री सेंटीग्रेड और कैल्विन, एनीथिंग यू कैन टेक. तो 1 जूल के जी इनवर्स, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और कैल्विन इनवर्स, दैट इज इन एस आई. एंड व्हाट इज इन CGS? बोलो CGS में क्या होगा? 1 अर्ग और ग्राम इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? डायमेंशन क्या आएगा देखो? डायमेंशन विल बी जूल इज व्हाट? जूल इज m1 L2 T minus 2. जूल इज व्हाट? m1 L2 T minus 2 divided by what is that? Gram is m1 and Kelvin K1. This is what? m0 L2 T minus 2 K minus 1. This is what the dimension of specific heat capacity. This is the dimension of specific heat capacity. Look here the dimension. S dimension, specific heat capacity. Important है. सही सही लिखो, सही सही सब लिखो. This is what? Specific heat capacity. अरे समझ में है? Understand this?
specific heat capacity dimension. The reading of thermometer is what? 0. एक ड्रॉप में मैंने आइस ले लिया, फिर हीट दे रहा हूँ, एक थर्मोमीटर डाल दिया, थर्मोमीटर का रीडिंग क्या दिखाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएगा। मैंने हीट दे रहा हूँ, देयर मस्ट बी राइज इन टेम्परेचर, बट टेम्परेचर राइज नहीं करेगा till all the ice will convert into water. When all ice will convert into water, then only rise in temperature. Okay आनंदिता, देखो मैंने एक ग्लास में कुछ आइस लिया, मैंने एक ग्लास में कुछ आइस लिया, एक ग्लास में, अच्छी तरह सभी सुनो, इंपॉर्टेंट है, एक ग्लास में मैं कुछ आइस लिया, आइस लेने के बाद इसको हीट सप्लाई किया, तो इमीडिएटली टेम्परेचर राइज करेगा क्या? आइस का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। So what will happen? I am just at this moment I am giving heat. When I am giving heat, what will happen? Can you say that immediately there will be rise in temperature? No. मैं heat supply करता जाऊँ, still there is no rise in temperature. When the temperature will rise? Tell me. When all the ice will convert into water. When all the ice will convert into water, then only then only what will happen? There is a rise in temperature of this substance, तभी जाके राइज करेगा। तो यहीं पे क्या हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ स्टेट मींस सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। व्हेन कन्वर्जन टेक्स प्लेस, यू विल सी दैट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, या फिर लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं है, डेल टी इज इक्वल 0, कैन यू से दैट क्यू इज इक्वल 0? नेवर। मैंने क्यू सप्लाई कर रहा हूं बट डेल टी इज 0, मतलब क्यू है बट डेल टी इज 0, तो हीट कहां जा रहा है? दैट हीट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर, दैट हीट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर, दैट हीट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट और लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, वाइस वर्सा। क्लियर? तो एट दिस मोमेंट when there is no rise in temperature but you are giving heat, at that moment specific heat of the substance will be what? What is the specific heat of the substance? Q by m del T. Temperature is 0, something by 0 is infinity. Very important. Exactly at this particular instant, specific heat of a substance is always infinity. ये एक 1 मार्क क्वेश्चन है, लिखो, राइट डाउन, नोट नंबर 1 करके लिखो। बोलो बोलो सर वाटर में तो टेम्परेचर राइज कर रहा है, हाँ, तो वाटर फिर में वो rise करेगा। नहीं, वाटर में नहीं, जब आइस जब कन्वर्ट होगा वाटर में, तुमने आइस रख लिया, आइस को अभी कन्वर्ट कर रहे हो वाटर में, जब तक एंटायर आइस कन्वर्ट ना हो वाटर में तब तक राइज नहीं करेगा, 0 डिग्री में ही रहेगा। समझ में है कि नहीं? 0 डिग्री Yes, sir. आइस जब ले रहे हो, एंटायर वाटर जब कन्वर्ट होगा, एंटायर आइस जब कन्वर्ट होगा वाटर में, तभी जाके 0 से आगे राइज करेगा, बट कंटिन्यूअसली यू आर गिविंग हीट। समझ में है कि नहीं? एज यू आर गिविंग हीट देयर मस्ट राइज इन टेम्परेचर, बट राइज नहीं करेगा। 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा तभी जाके आगे राइज करेगा। एट दिस मोमेंट व्हाट इज दैट? स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस राइज इज इंफिनिटी। समझ में है अभी? समझ में है? Yes, sir. बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, लिखो 10, लिखो एक सेंटेंस लिखो नोट 1 के लिए। The specific heat of a substance when it melts or boils, the specific heat of a substance, the specific heat of a substance when it melts or boils specific heat of a substance when it melts or boils at constant temperature is infinity. At constant temperature is infinity. At constant temperature is infinity. Next, second note. Let's move to the second note. Second note क्या है? Same adiabatic process. Adiabatic change मतलब क्या है? Adiabatic means no heat is given, मतलब thoroughly insulated system. इंसुलेटेड सिस्टम को एडियाबेटिक भी बोला जाता है। इंसुलेटेड मीन्स एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक मीन्स परफेक्टली इंसुलेटिंग सिस्टम। इफ इंसुलेटिंग सिस्टम और एडियाबेटिक सिस्टम इज देयर, ऑलवेज क्यू इज 0। ना हीट दे सकता है ना ले सकता है, इसलिए क्यू 0। अगर क्यू 0 हुआ तो एस कितना होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा उसी के लिए? 0 होगा। समझ में है? लिखो
For an insulated or adiabatic system, for an insulated or adiabatic system, Q is equal to 0. Q is equal to 0. Therefore, S is equal Q by M del T, that is 0. Always 0. चाहे जो भी सब्सटेंस हो, अगर एडियाबेटिक में जा रहा है मतलब इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 होगा. चाहे जो भी सब्सटेंस हो, इस मेल्टिंग पॉइंट में हमेशा इसका स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी होगा. चाहे जो भी सब्सटेंस हो, इसका बॉइलिंग में हमेशा क्या आएगा, वो भी इन्फिनिटी होगा एस. ये सब इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है. हुआ? किसका डाउट है इसी में? किसी का डाउट है? डाउट नहीं सर है? एडियाबेटिक सिचुएशन क्या है तो और एक बार रिपीट कर. एनी डाउट? सर वो एडियाबेटिक सिचुएशन क्या है और एक बार रिपीट कर सकते हैं? एडियाबेटिक मतलब परफेक्ट इंसुलेटिंग सिस्टम. तुम्हारा थर्मोफ्लास्क जो है, थर्मोफ्लास्क इज परफेक्टली एडियाबेटिक सिस्टम. ना बाहर से हीट दे सकता है ना ले सकता है. अगर हीट दे नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा, Yes, मतलब परफेक्टली Q इज इक्वल व्हाट 0. तब उसी के अंदर जो भी है, चाहे वाटर हो या फिर वॉक्स हो या फिर एनीथिंग हो, ऑलवेज इट्स S इज 0, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 0. समझ में है? अंडरस्टैंड दिस? नाउ कुछ क्वेश्चन है या नहीं है? ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड इंपॉर्टेंट नोट. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत बार एंट्रेंस में गिरता है, मेडिकल में बहुत बार गिरा है ये थर्ड क्वेश्चन. द स्पेसिफिक राइट डाउन हीट ऑफ ए सब्सटेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस. The specific heat of a substance also depends on the state of the substance. State of the substance, that is state of the substance, that is solid, that is solid, liquid, that is solid, liquid and gas. And gas. For example, देखो एक एग्जाम्पल लेंगे. आइस एंड वाटर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है ना? अरे आइस एंड वाटर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टीम भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ही का प्रोडक्ट है. आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर, वाटर इनटू स्टीम, बट तीनों का स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल राइट डाउन, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस लिखो, ये याद रखो. स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. अंडरस्टैंड दिस? आइस का है. वाटर का क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. एंड स्टीम का कितना है? स्टीम का है व्हाट 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट. ये वैल्यू सब याद रखोगे, समटाइम्स प्रॉब्लम में नहीं देता है वाटर का. तो आइस का है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम का है 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. ये था मेरा थर्ड नोट. नाउ व्हाट इज द फोर्थ नोट हियर? राइट डाउन. Sir, बोलो 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 स्पंदन. sir, you said when during the change of state, sir, S equals to infinite. हाँ, when there is a change in state, you see proper ice specific heat, proper ice means -1 degree centigrade to 0 degree centigrade you are getting here. When ice at 0 degree centigrade, if you calculate its specific heat capacity, you'll get 0.5 calorie per gram. Now ice will as such no heat you are giving. Now when you are giving heat to 0 degree ice, now it is converting to 0 degree water here. Now it is converting. Now here the specific heat capacity of both ice and water is infinity. No more it is 0.5 or no more it is 1. Do you follow this statement, Spandan? Yes, sir. Yes, sir. When I'm taking alone water, no heat is given to water. Understand this? Initially, its specific heat capacity is 1 calorie per gram. Now, at the boiling point means what? 100 degree centigrade. When 0 to 100 you are taking, its specific heat capacity remains constant, 1 calorie per gram. At the moment of 100, when it just reaches to the boiling point, 100 degree of water is converting into 100 degree of steam there. There again its specific heat capacity is infinity. Both water and steam specific heat capacity will be infinity. Understand this or not? No more it is what 1 or no more it is 0.47 steam का हुआ.
समझ में है? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट नोट Yes, राइट sir. डाउन, फोर्थ इंपॉर्टेंट नोट, ये भी सब क्वेश्चन है, कितना है, राइट डाउन। Specific heat capacity for hydrogen is maximum. Specific heat capacity of hydrogen is maximum and it is hydrogen का, and it is 3.5 calorie per gram per degree centigrade. हाइड्रोजन का मैक्सिमम है 3.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स मैक्सिमम। एंड मिनिमम किसका होगा? मिनिमम फॉर रेडन एंड एक्टिनियम, रेडन, and it is for, and minimum for, write down, minimum for radon and, radon नाम सुना है, radon and सर actinium, एलिमेंट है I think. एलिमेंट है actinium, and its value is your specific heat capacity दोनों का है नियरली 0.022 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, नियरली दोनों का इतना है 0.022 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? तो यहीं पे क्वेश्चन गिरता है, इज इट पॉसिबल दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज लेस देन 1 कैलोरी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल गया। अरे आइस का तो है, इसका भी है, इसका भी है। इज इट ग्रेटर देन 1? यस, हाइड्रोजन का 3.5 है। वाह, दीज आर द केसेस। काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। वाह, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छी तरह पढ़ो, इजी है। ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है एंट्रेंस का। जैसे एंट्रेंस का यूनिट डायमेंशन से लेकर ग्रेविटेशन तक डिसाइडिंग फैक्टर है, काफी क्वेश्चन गिरेगा। एंड ये हीट, थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑसिलेशन, तीन में काफी क्वेश्चन गिरेगा। ये तीन वो उसी में मिला तो लगभग 80% क्वेश्चन एंट्रेंस में गिरता है, ऑलमोस्ट 80 to 85%। इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट, इजी है, इजी टू गेट मार्क। कैलकुलेशन भी बहुत कम है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इसी में, इसलिए ध्यान से सुनो। वाह, नेक्स्ट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, हियर इफ यू यूज द फॉर्मूला, मास है, हीट है, टेम्परेचर डिफरेंस है। अभी मोलर स्पेसिफिक हीट लिखेंगे, व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट, लिखो, व्हेन द स्पेसिफिक हीट इज एक्सप्रेस इन मोल। अरे मोल याद है कि नहीं? मोल, नंबर ऑफ मोल्स। अरे मोल क्या है? अरे मोल क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। 6.010 10 to the यस, minus अरे 23 नंबर ऑफ atoms and मोल्स है, molecules. केमिस्ट्री में कैलकुलेट किया, m by कैपिटल M। अरे मास ऑफ द सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर मास ना, याद है कि नहीं? अरे इसको मोल बोलोगे ना, फिजिक्स वाले म्यू लिखते हैं इसको, Yes, मोल को। sir. म्यू और n इज इक्वल क्या है? m, मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर मास। अरे pv इज इक्वल nRT लिखे थे, ये बार बार आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। n कितना है? स्मॉल m बाय कैपिटल M, ऐसे लिखे थे कि नहीं? याद है केमिस्ट्री? या Yes केमिस्ट्री sir, नहीं सर पढ़ा? अभी Yes, सर sir. पढ़े थे। हाँ, इंपॉर्टेंट है, पीवी इज इक्वल m बाई एम इंटू आर टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको भूलो मत, आगे बहुत जगह पे आएगा। केमिस्ट्री जो जो पढ़े थे, फिजिक्स वही वही पढ़ोगे अभी आगे जाके, इसलिए मुझे पढ़ाओगे सब केमिस्ट्री। समझ में है कि नहीं? अरे 15-15 मिनट एक एक स्टूडेंट मुझे पढ़ाएगा केमिस्ट्री, सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा। वाह, देखो नेक्स्ट इज अ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लिखो, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C लिखा जाता है, कैपिटल C। अगर कोई इसको अगर C लिखोगे, स्पेसिफिक हीट को स्मॉल c लिखा जाता है। अरे इसको स्मॉल c लिखा जाता है, S और स्मॉल c, बट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज कैपिटल C। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? देखो डेफिनेशन वही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या था? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहीं पे यूनिट मास के जगह लिखेंगे क्या? 1 मोल ऑफ द Mole. सब्सटेंस One लिखेंगे, mole. बस unit दैट्स ऑल। mole. 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस लिखेंगे। वह लिखो, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज the amount of heat required to raise the temperature of
molar specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram mole of the substance 1 gram mole of a substance through 1 degree centigrade through 1 degree centigrade through 1 degree centigrade. Therefore, I can say here molar specific heat capacity molar specific heat मतलब क्या है m इंटू ये m क्या है मोलिकुलर मास है ना m इंटू ग्राम स्पेसिफिक हीट m इंटू ग्राम स्पेसिफिक हीट बहुत इंपॉर्टेंट है तो मोलर स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल m इंटू S मेरा ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या है S है S है अरे समझ में S है C is equal m into S. S is the specific heat of a substance. C is the molar specific heat of a substance. अरे ये समझ में है सभी का सभी को समझ में है मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल m इंटू ग्राम स्पेसिफिक हीट ग्राम स्पेसिफिक हीट मतलब C इज इक्वल m इंटू S. तो C का और एक मोलर स्पेसिफिक हीट का और एक मिल रहा है क्या देखो एक्सप्रेशन मिल रहा है तो मेरा C इज इक्वल क्या मिलेगा अरे C इज इक्वल क्या मिलेगा बोलो मेरा यहीं पे मिला था C कितना मिलेगा m इंटू S C is equal to यस C इज इक्वल n q by del t. हाँ यस S डाल दो वेरी गुड S डाल दो S मेरा क्या है S इज इक्वल q बाई m del t अरे समझ में आया So what will happen here? Look here. So this is what C is equal. Very interesting. M by M into Q by del T. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. M by M क्या है? अरे मेरा नंबर ऑफ मोल्स है. नंबर ऑफ मोल्स N और म्यू लिखेंगे. फिजिक्स में म्यू लिखते हैं. N केमिस्ट्री में लिखते हैं. अरे ईगो हट करता है यहीं पे. हुआ? अरे फिजिक्स वाला को ईगो हट करता है अगर एन लिख दिया तो म्यू लिखते हैं उसी में अरे एन भी लिखो कोई काटेगा नहीं मार हुआ कि नहीं तुम्हारा मर्जी एन लिखो या म्यू लिखो लिखा बेटर होगा सर क्योंकि तुम्हारा टेक्स्ट बुक में म्यू लिख देते हैं तो बच्चे कंफ्यूजन होते हैं वहां पे बोलते हैं सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे आ गया तो मुझे मेरा सर पीटने की इच्छा होता है उसी वक्त हुआ कि नहीं अरे समझ में आया कि नहीं अरे यहीं पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा हीट चैप्टर में हुआ इसलिए क्या एन लिखो या फिर म्यू लिखो तुम्हारा मर्जी में म्यू इसलिए आदत डालना चाहता हूँ यहीं पे म्यू लिखो म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है हीट चैप्टर में म्यू का मतलब है मोल नंबर ऑफ मोल्स हुआ समझ में तुम्हारा मर्जी जो भी लिखो तो ये क्या आएगा m बाई एम तो 1 बाई n लिखेंगे अरे n और म्यू इज इक्वल m बाई एम में हमको केमिस्ट्री वाले पढ़ाए थे अरे समझ में है कि नंबर ऑफ मोल्स ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग किए थे केमिस्ट्री में m बाई एम याद है वो सब प्रॉब्लम अरे मोल का प्रॉब्लम याद है कि नहीं Yes sir. सब आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वहां पे सबको पता चलेगा कितना ज्यादा केमिस्ट्री पढ़े हैं समझ में है कि नहीं अरे मुझे केमिस्ट्री वहां पे पढ़ाओगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में उसके तुरंत बाद आएगा सब सिर्फ मोल का सर इस चैप्टर में सर नहीं उसके बाद आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो केमिस्ट्री में था फिजिक्स में भी है उसमें फुल ऑफ केमिस्ट्री 100% केमिस्ट्री और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ोगे वहां पे फिजिक्स का हुआ बट केमिस्ट्री पूरा पढ़ोगे तो दिस इज व्हाट m बाई m इज व्हाट 1 बाई क्या लिखे n लिखे या म्यू लिखे तुम्हारा मर्जी 1 बाई n q बाई डेल टी जहाँ पे म्यू है वहां पे क्या है नंबर ऑफ मोल्स है हुआ तो 1 बाई n व्हाट इज दैट q बाई डेल टी दिस इज व्हाट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस यहीं से शुरुआत हुआ एंट्रेंस का क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखो 1 बाई n q बाई डेल टी काफी इंपॉर्टेंट है कैसे आगे देखेंगे सिर्फ थ्योरी पढ़ लो अभी एक्सक्यूज मी सर यस बोलो सर आप मींस 2:45 से क्लास कर रहे हैं सर 3:10 से क्लास कर सकते हैं स्कूल है तुम्हारा हेलो यस सर हाँ सब टाइम सर नेक्स्ट इज तो फिर 2:45 में क्लास रहा हुआ कि नहीं कल ओके 1 बाई n सर 3 से ना
3 से 245 में रखेंगे। स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1/n Q del T। इसमें 2 टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज आर देयर, राइट डाउन। 2 टाइप्स ऑफ molar specific heat capacities are there, write down। 2 टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज आर देयर। जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको डिटेल पढ़ेंगे, बट यहीं पे लिखेंगे, राइट डाउन। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी at constant volume, at constant volume, that is CB। ये सिर्फ डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे यहीं पे, एंड इसका जो मेन रिलेशन है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CB लिखा जाता है। सेकंड है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी at constant volume, that is what CP। ये दो ही मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम में तो एक कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है।